یہ بڑی زبردست حدیث ہے, حوالہ سننے سنن نسائی الکبرى, امام نسائی کی جو کتاب ہے. ویسے یہ حدیث جامعہ ترمذی میں بھی ہے ضعیف سند کے ساتھ, لیکن صحیح سند سنن نسائی الکبرى میں 10,680 ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کزن تھی, حضرت علی کی بڑی بہن ام ہانی بنت ابی طالب. وہ بوڑھی ہو گئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملنے کے لیے جاتے تھے. حضور کی تو ماں کی جگہ ہی تھی نا, بہت بڑی تھی, بوڑھیا تھی. ایک دن ان کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت بوڑھی ہو گئی ہوں, مجھ سے اب کو زیادہ وظیفے اذکار نہیں ہوتے, مجھے کوئی بیٹھ کے کرنے والا نہ کوئی آسان سا وظیفہ بتا دے کہ جو کفایت کر جائے میرے لیے. سنن نسائی الکبرى انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 10,680. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ حیران ہوں گے, میں نے ابھی تک کسی ذکر کی اتنی فضیلت نہیں دیکھی جو اس ذکر کی ہے. آپ ذرا سنیں اور اللہ کی رحمت کا شکر ادا کریں. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. 4 اذکار آپ نے بتائے. آپ نے فرمایا 100 دفعہ سبحان اللہ روزانہ پڑھ لیا کرو. کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 3 منٹ بھی نہیں لگتے. یہ گویا ایسا ہے تم نے 100 غلام اللہ کے حضور خیرات کر دیے, ان کو آزاد کر دیا. ایک غلام آزاد کرنا 60 روزے رکھنے کے برابر ہے, بخاری مسلم کے تحت وہ روزے کا کفارہ. آپ ذرا 60 کو 100 سے ضرب دیں, 6,000 غلام, کہاں تک بات جاتی. 100 دفعہ الحمدللہ پڑھ لو, گویا تم نے 100 گھوڑے جہاد میں بھیج دیے. اللہ اکبر. 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو, یہ ایسا ہوگا گویا تم نے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کیے, نحر کر دیے. اور 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو, یہ اتنا ثواب ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان سارے فاصلے کو بھر دے گا. 100 دفعہ لا الہ الا اللہ. پھر لا الہ الا اللہ تو پوری کائنات ہی لا الہ الا اللہ کے لیے تو بنی ہوئی ہے. یہ سب کا سب تو یہی ہے نا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہر نبی کو اسی دعوت کے ساتھ بھیجا گیا کہ طاغوت کی نفی کرنی ہے اور اللہ ہی کی عبادت ہے, لا الہ الا اللہ. تو یہ الحمدللہ ذکر ہے. اور بھائیو, اسی کانٹیکسٹ میں یہاں پر میں آج مسئلہ ایک اور حل کروں, بڑے عرصے سے ادھار تھا, وہ 6 کلموں کا مسئلہ. یہ ہماری اکثر چھوٹی کتابوں میں بھی اور اسکول کی کتابوں میں بھی 6 کلمے پڑھائے جاتے ہیں. یہ 6 کلمے یاد کرنے ہیں, اور اگر کسی مولوی کو غصہ آیا ہو, پیسے اس نے زیادہ ڈیمانڈ کرنے ہو, تو دولہا بھی اس دن کہاں پڑا ہوتا ہے شادی والے دن کے 6 کلمے ہی نہ مجھ سے سن لیں. تو وہ یہ کلمے لوگوں کو انہوں نے ڈیوائز کیے ہوئے ہیں کہ یہ 6 کلمے. کلمہ عربی میں کہتے ہیں جملے کو, سینٹینس کو. یہ سبحان اللہ بھی ایک کلمہ ہے, الحمدللہ بھی ایک کلمہ ہے. یعنی یہ کوئی کلمہ سے مراد صرف یہ نہیں کہ جس کو پڑھ کے مسلمان ہوا جاتا ہے, وہ بھی ایک کلمے میں سے ایک کلمہ ہے. کوئی بھی کلمہ آپ بولیں گے, کوئی محمل کلمہ بھی بولتے ہیں, کلمہ تو وہ ہے, کوئی بھی آپ سینٹینس بولتے ہیں. تو یہ جو 6 کلمے بیان کیے جاتے ہیں نا جی, ان میں سے پہلے 3 کلمے جو ہے نا وہ بالکل انہی الفاظ کے ساتھ صحیح سند سے ثابت ہیں, کلمات. لیکن وہ کلمات سے مراد یہ نہیں کہ وہ 3 کلمے ضرور یاد کر رہے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کے اذکار ہیں آپ کی کریں. چوتھا بھی تقریباً تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ ثابت ہے. باقی جو 5واں اور 6ٹھا ہے یہ ٹوٹلی فیبریکیٹڈ ہے, یہ کہیں پر موجود نہیں ہے, یہ علماء نے خود ڈیوائز کیا ہوا ہے. تو میں آج ان 4 کلمات کے پہلے جو ثابت ہیں وہ ان کا حوالہ دے دیتا ہوں. چونکہ ابھی ذکر ہوا تھا سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, یہ تیسرے کلمے کے اندر آتا ہے جو ہماری یعنی پبلک میں مشہور ہے. آپ اس کو تیسرا کہہ دیں, چاہے آپ اس کو 10واں کہہ دیں, کلمات ہیں وہ, آپ نام کچھ بھی رکھ سکتے ہیں. تو ان 4 کلمات کی جو فضیلت ہے, سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اس پہ میں نے پورا لیکچر دیا ہے. مسئلہ نمبر 91, صلاۃ و تسبیح کے صحیح فضائل اور اس کے صحیح احکام و مسائل. اس میں میں نے اس کلمات کی بڑی فضیلت بتائی ہے. 2 حدیثیں میں وہیں سے بیان کر دیتا ہوں. صحیح مسلم 5601, دونوں صحیح مسلم سے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین کلمات 4 ہیں, سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اب یہ دیکھیں تسبیحات فاطمہ جو ہم نماز کے بعد پڑھتے ہیں, اس میں بھی یہ کلمات آتے ہیں, سبحان اللہ, الحمدللہ اور اللہ اکبر. اور دوسری حدیث صحیح مسلم کی 6847, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ 4 کلمات پڑھنا ہر اس چیز سے بڑھ کر محبوب ہے جس پہ سورج طلوع ہوتا ہے. یعنی دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے بڑھ کر محبوب ہے میں یہ 4 کلمات پڑھوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم 6847,
सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। सलात व तस्बीह में भी इतना ही पढ़ना होता है, लेकिन जो तीसरा कलमा है उसमें तो आगे भी चलता है, तो उसका आप हवाला सुन लें। सही बुखारी में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 1154 नंबर हदीस है और सुनन इब्ने माजा में 3878 नंबर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपका ये अपना जिक्र भी था और रात के वक्त आपने फरमाया कि जो शख्स रात के वक्त उसकी आंख खुले किसी भी वक्त और वो पढ़ ले, ये सुन ले क्या पढ़ना है, बड़ा खास वजीफा है। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम तक है। उसके बाद पढ़े अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल कर दे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये काश ये तीसरा कलमा पूरे यही वाला बना देते ना जो आया सही बुखारी के अंदर और सुनन इब्ने माजा का मैंने हवाला दिया, तो क्या ही अच्छा होता इस पूरे को, तो लोगों को याद भी होता, रात को उठ के पढ़ भी लेता। तो बहरहाल ये अल्फाज उसके अंदर मौजूद है। अच्छा, इसी तरीके से ये तो तीसरा कलमा हो गया ना, चूंकि उस हवाले से बात हुई थी। दूसरा कलमा जो है, जो हमें कहा जाता है और इस्लाम के वक्त इस्लाम कबूल करते वक्त शहादत, कलमा शहादत भी पढ़ा जाता है, ये सही मुस्लिम में मौजूद है 553 नंबर हदीस कि जो शख्स वुजू करने के बाद ये कलिमात पढ़ ले तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल देता है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये है दूसरा कलिमा, तो ये भी सही मुस्लिम से अल्हम्दुलिल्लाह साबित हो गया। अच्छा, अब रह गया जनाब चौथा कलिमा। पहले में मैं बाद में आता हूं ना, क्योंकि पहले कलमे को बड़ा झगड़ा, कहते नहीं पहला कलमा ही कोई नहीं साबित, साडे बुजुर्गों ने दसिया है। मैं साबित करना तो बुजुर्गों ਨੂੰ इंशाअल्लाह ताला अगर जिंदा होंगे तो अज उन्होंने पता लग जाता कि जी उन्होंने किताबां पढ़ी होंगी तो उन्होंने पता होता कि कलमा मौजूद है। तो पहला कलमा एंड पे रखा हुआ है मैंने। चौथा कलमा जो है ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, इसके साथ वो बाकी भी मिलाते हैं, बियदिहिल खैर युहयी व युमीत व हुवा हय्युल ला यमूत अबदन अबदा दुल जलाली वल इकराम, ये बाकी अल्फाज भी मिलाए हुए हैं। वो साबित नहीं है, जो साबित है वो मैं आपको बता देता हूं। मैंने पिछली दफा भी बताया था, वो जामिया तिर्मिज़ी में वैसे जो बाजार में जाने की दुआ है ना वो साबित है, उसमें ये अल्फाज भी मौजूद है। अबदन आबादा के अल्फाज को निकाल के और दुल जलाली वल इकराम को निकाल के बाकी अल्फाज मौजूद हैं, लेकिन वो रवायत ज़ईफ है। उसमें अमर बिन दिनार जो है वो जमहूर मुहद्दिसीन के नजदीक ज़ईफ रावी है। बहरहाल जो सही हदीस है जामिया तिर्मिज़ी में 3474 नंबर हदीस है और मुस्नद इमाम अहमद में 18019 नंबर है, जिल्द 4 सफा 227 पर। वही जो मैंने बताया, फजर के बाद बगैर पांव बदले हुए और मगरिब के बाद बगैर पांव बदले हुए तशहुद की हालत में 10 दफा पढ़ना है। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्द बियदिहिल खैर युहयी व युमीत व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। तो ये कलिमात जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह साबित है। बाकी रह गया जनाब पहला कलमा, तो सही मुस्लिम की पहली हदीस में ही पहला कलमा मौजूद है किताबुल ईमान में। मुकदमे के बाद जब हदीस, वो हदीस चूंकि मुकदमे में 92 रवायात हैं तो वो 93 नंबर है इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक सही मुस्लिम में, और 113 नंबर भी सही मुस्लिम में, और सही बुखारी में भी मौजूद है पहला कलमा 8 नंबर हदीस। 8 पास भी होते ना जनाब, 8वीं तक पहुंचे होते तो ये 8वीं हदीस सही बुखारी में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। उसमें पहली चीज ये है कि तुम गवाही दो ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अन्ना की वजह से ये मोहम्मदन बन जाता है, अन्ना ना होता तो मोहम्मदुन बनता। इसी तरीके से अला आ जाए तो मोहम्मदिन बन जाता है। ये अरबी लिंग्विस्टिक का मैं आपको बता रहा हूं, जैसे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन, हर जो लफ्ज है वो अपनी असली हालत में हालत रफा में होता है। असल लफ्ज है मोहम्मदुन, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो दुर तो रा की वजह से बन जाता है ना, तो मोहम्मदुन। दुरूशी में क्या पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन, अला की वजह से वो दुन दिन बन जाता है। इस तरह अन्ना की वजह से मोहम्मदुन मोहम्मदन बन जाता है। मोहम्मदन भी बन जाएगा, कभी मोहम्मदिन भी बन जाएगा, कभी मोहम्मदुन ही रहेगा, तो वह अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। तो देखें ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर, वो कहते नहीं अन्ना आ गया, वो अन्ना ही है भाई अरबी में। तुम गवाही दो इस बात की कि ला इलाहा इल्लल्लाह और ये कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कलिमात तो मौजूद है, ये कुरान में भी है,
सूरत अल-फतह में नहीं आया मोहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह भी कई जगह कुरान पाक में आया और मोहम्मद रसूलुल्लाह भी सूरत अल-फतह के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आ गया। लिहाजा ये पहला कलमा भी साबित हुआ। तो ये 4 कलिमात जो है जो हमारे पब्लिक में मशहूर हैं वो साबित है। निकाह की कोई शर्त नहीं है। किसी को अगर वो उर्दू में भी कह देना मैं अल्लाह को एक मानता हूं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पैगंबर हैं और आखिरी नबी हैं, खातमुन नबीयीन, उर्दू में भी कह दे, अंग्रेजी में मुसलमान हो जाएगा। अरबी में कहना होगा जरूरी नहीं है। ना कोई निकाह की ये शर्त है कि आप उस वक्त भी ये सुने जाएं इस हवाले से। बल इसी हवाले से 5वां और 6ठा कलमा जो है वो कहीं साबित नहीं है। और उसी किताब में जो ईमान मुफस्सिल और ईमान मुजमल लिखा हुआ होता है उसमें भी जो ईमान मुफस्सिल जो है वो तो साबित है सही मुस्लिम में, वही 93 नंबर हदीस में, कि ईमान यह है कि तुम ईमान लेकर आओ अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर और तकदीर के अच्छे और रसूलों पर और तकदीर के अच्छे और बुरे होने पर और क़यामत के दिन उठने पर। वो अल्फाज ठीक है, लेकिन ईमान मुजमल जो है इसमें अल्फाज ये कहीं साबित नहीं, लेकिन वो अकीदे का इजहार है। उसमें सिर्फ अगर एक उसमें एडिशन कर दी जाए ना, इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल कल्ब कहा जाता है। मैं जुबान से इकरार करता हूं और तस्दीक करता हूं अपने दिल से। उसके साथ आना चाहिए वह अमल बिल जवारे, और अपने आमाल से भी उसको साबित करता हूं। अमल भी ईमान का हिस्सा है, अमल ईमान का हिस्सा है। सही बुखारी की हदीस है कि हया ईमान में से तो अमल है। सही मुस्लिम 240 नंबर हदीस है, अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मोमिन, अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है, अंसार की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। फिर सूरतुल अनफाल शुरू ही यहीं से होती है कि ईमान वालों पर जब भी कोई नई आयात नाजिल होती है उनका ईमान बढ़ जाता है। तो अमाल की वजह से ईमान बढ़ता है, यह अहले सुन्नत का इजमाई अकीदा है। तो वो इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल कल्ब के साथ एक साथ लगा लें, अमल बिल जवारे और अमाल अपने जो है आजाद के साथ करना। तो ये 3 चीजें मिलेंगी तो फिर हमारा वो कलमा मुकम्मल होगा। लेकिन ये सब जस्ट स्लोगन है, ये किताब सुन्नत में नहीं आया। एज ए स्लोगन अगर कोई इसको याद रखता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है।